Daud once called to Parvez. Daud once called to Parvez. Okay, sir. Anil once called to Alam. Yes, Anil, am I audible to you? Yes. Okay, fine. Once called to Alam. So we need to insert 3 line items here. Final 4 line items we need to add. So you can see here shipping cost, final shipping cost variance, and production orders is this is a no data actually. So we can use as heading to separate organize a line item. That's it. So this is a not important line item, and it doesn't consist any data, and we didn't use any formula. So just it is category for divide to divide the line items we use this one. So you can see this is the main 3 line items. You can see shipping cost, how much shipping cost it happening, calculate the shipping cost based on the shipping method line item. On the base of shipping method line item, we should calculate the how much cost happening. This is the first line item, shipping cost, and final shipping cost line item is the second line item. We need to add formula for this line item. Calculate the shipping cost based on the final shipping method line item. Final shipping method means what is the difference between the normal shipping cost and final shipping cost here? What is mean by final and normal shipping cost? Yes. Why we use final shipping cost? If we use any override, If we use override method, if you change the yeah, method of shifting, so what happen?
shipping, if you The change the final shipping shipping method, cost then will- what happens? Cost will increase. So in that situation, Yes. this final shipping cost is a become importance. So charges will increase now. So that is the reason main importance role play in each and everywhere. Override and override shipping method, override like override amount, each and everything comes into play. So that is why we are using this one. So you can see shipping cost variance. Variance means you can see, you can understand a normal difference between the normal shipping cost and final shipping cost. It comes variance. If you do expenses 1000 normal shipping cost, if you do final shipping cost, if you change the override method, if you change the whatever shipping method is there, then it will cost up to 2000, for example. The difference will become 1000, it will become extra. So shipping cost variance will become 1000. So you can see here I inserted. Are you able to watch my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You can see this is a shipping cost formula, and final shipping cost and shipping cost variance. So three line items are there. So you can see here in our model. So my shipping cost is, you can see 532 is my shipping cost. So this is my shipping cost. Then final shipping cost is 819.4. So this is the shipping cost, normal shipping cost and final shipping cost. Why it happens? So I did override here, that is the reason. So you can see here there is no variance. If I didn't override any method, you can see normal and final shipping cost will be same. Shipping cost and final shipping cost will be same. Here and here same. Each and everywhere same. It will be same. Initial and final. But whenever we do override, in that situation what happens? So final shipping cost will increase. So that is the reason. You can see here negative value here. So you can see variance. So if I remove this one, automatically it will become 0. So if I didn't override any cost here, so if I didn't override any shipping method, then nothing will happen. So this is the formula, you can see here. So what formula we are using, you can see each and every line item. For final shipping cost formula we are using, so final shipment amount divided by 1000, so into whatever we have transportation shipping metrics by week into cost per 1000 units. This is the one module. So you can see in this module we are bringing value. Transportation 0, we are bringing value from here. Transportation, you can see cost per 1000 units. So how much cost happening, you can see cost per 1000 units. So each and every product you can see. So this is from this line item we are getting value. We are bringing value, how much cost happening. You can we are bringing transportation 01 shipping metrics by week by cost per 1000 units is the line item we are bringing. So this is our source. Then look this value, and on the base of product SKU wise and product shipping method. Product shipping method, on the base of these two details, so we are getting value. We are getting shipping cost 532 is happening, you can see. So each and everything we are getting, just we are bringing value from this module. So we are using lookup function product wise and shipping method wise we are getting. So this is my shipping method, shipping cost formula. So final shipping cost, you can see here. So what is the difference between this one means, here final shipping method will be there in here, and previous one just shipping method will be there. That is the difference. Nothing is difference. So only shipping method is there here in condition. So you can see here
in final shipping cost, just you have only final is a extra word you can see here. Final shipping method you have. So we are giving reference final shipping method and normal shipping method. So that is the difference between the shipping cost and final shipping cost formula. So fine, you can see. So until and unless if you override any shipping method, you didn't get any difference. So already yesterday we have seen, अगर जब तक ओवरराइड नहीं करेंगे तो क्या होता है यार, ओवरराइड नहीं करेंगे तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है सेम रहता, जब ओवरराइड करेंगे तो क्या होता, कौन सा भी चीज़ क्या होता है यार, डिफरेंस बढ़ जाता अपने को, यानी वेरिएंस के अंदर आ जाता. ये हो गया आपका शिपिंग फाइनल शिपिंग मेथड कॉस्ट का जो है फार्मूला है. एंड जब वेरिएंस की बात आ रही तो क्या होता, इफ नॉट ओवरराइड शिपिंग मेथड देन जीरो. अगर ओवरराइड नहीं कर रहे तो जीरो है, पूरा जीरो है, ओवरराइड नहीं कर रहे तो. अगर मैं ओवरराइड करूंगा तो क्या होता, ऑटोमेटिक डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे. ये हो गया आपका यहाँ पे फार्मूला के अंदर जो है शिपिंग कॉस्ट वेरिएंस. यू कैन सी इफ नॉट ओवरराइड शिपिंग मेथड देन जीरो. अगर ओवरराइड नहीं कर रहे तो जीरो है. एल्स अगर शिपिंग अगर कर रहे तुम तो क्या होता, शिपिंग कॉस्ट माइनस फाइनल शिपमेंट अमाउंट, यानी शिपिंग कॉस्ट जो भी है उस वो जो है उसमें से फाइनल शिपमेंट अमाउंट जो है सब्सट्रैक्ट करना है, तो उसमें क्या होता आपको डिफरेंस आ जाता. ये हो गया आपका शिपिंग कॉस्ट वेरिएंस जो भी है, इससे समझ में आता. तो ये हो गया आपका फाइनल शिपिंग कॉस्ट वेरिएंस. सो ये प्रोडक्शन ऑर्डर्स का एक्स्ट्रा लाइन आइटम है, ये डिवाइडर के लिए यूज़ कर रहे. हम यहाँ पे देख सकते हैं इसको कैसा रीऑर्डर करना है. ये पूरा जो है होने के बाद पूरा लाइन आइटम्स को जो है रीऑर्डर करना है. अपडेट इन्वेंट्री ऑर्डरिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाइल सेटिंग्स बिफोर यू कंटिन्यू ऑर्गेनाइज एंड अपडेट द स्टाइल फॉर्मेटिंग फॉर द इन्वेंट्री ऑर्डरिंग मॉड्यूल लाइक दिस एग्जाम्पल. सो इसका ऐसा रहना है, फर्स्ट बिगिनिंग इन्वेंट्री, देन फोरकास्ट डिमांड, पीओ सबमिटेड, कंफर्म पीओ डिलीवरी एंड कंफर्म परचेस ऑर्डर रिसिप्ट. इसके अंदर जो है बिगिनिंग इन्वेंट्री शुड बी गेट हाईलाइट. सो यू कैन सी बिगिनिंग इन्वेंट्री, देन forecast demand, PO submitted, forecast demand, and after that what should be there, PO submitted and क्या रहने यार, PO submitted receipt, confirmed PO delivery, confirmed PO order receipt. ये 3 लाइन आइटम्स रहना है आपको. confirmed PO delivery, confirmed purchase order receipt. तो इसके लिए जो क्या करना अपन इसको, we should do reorder here. So yes, it is completed. Then you should apply this one. Then you should change style of this line item. ये line item का style change करना है. It should be heading. So just you completed this one. Then next ending inventory. After that, after beginning inventory you should get ending inventory. So under ending inventory what are the line items you should get? Safety stock target and safety stock exception count. So these two should come. So you can see here where is ending inventory and safety stock target and safety stock exception count. Yes, completed this one. Ending inventory, safety stock target and safety stock exception count. Then it should be style of ending inventory should be heading 1.
then change it to heading 1. Yes, I completed this one. So next, after this one ending inventory, you can see production order should be there. Production orders, I should change here heading as a heading production orders. Yes, it is fine. Then I should change then I should get reorder flag here. After reorder flag, what should I get? Submit purchase order receipt, suggested order amount per month. So override suggested order amount. So this 3 I should get. So you can see submit purchase order request. First I should get submit purchase order receipt request, then suggested order amount, then override suggested order amount, override suggested order amount, then override amount. So override so in this one, which line item I should do highlight? Submit purchase order request, override suggested order amount should be, both line items I should do highlight. What is the setting for this one? Summary 2 and summary 3. Style of this line item should be summary 2. Then override amount should be heading 3. Final shipment amount summary 1. Final shipment amount, shipping method, shipping time weeks, shipping cost. Final shipment amount, first of all I should do reorder. Final shipment amount, final shipment amount, shipping method, shipping method and shipping time weeks. Shipping method, shipping time weeks, then shipping cost, fourth should be shipping cost. override shipping method, override method, Shipping cost, then override shipping method and override method. override method, Okay, so then final shipping method. then we can think later. First of all, final shipping amount
I should keep summary 1 final shipment amount. This one for summary 3 here. Summary 1 Summary 1. for final shipment amount summary 1. So Yes. then override shipping method summary 3. Override shipping method Yes. and override method. So override shipping method, क्यों हाईलाइट कर रहे हैं यार ये लाइन आइटम्स को? यस, क्यों हाईलाइट कर रहे हैं यार हम ये लाइन आइटम्स को? फाइनल शिपिंग मेथड, फाइनल शिपिंग मेथड, देन Final shipping time weeks. final shipping time weeks, final shipping cost variance, shipping cost variance. Okay, fine. We need to do summary method 1. Yes, summary method 1. क्यों हाईलाइट कर रहे हैं यार परवेज ये? कैटेगरी डिवाइडर के जैसा कैटेगरी शो करने के ये जो है जो हाईलाइट कर रहे हैं इसके अंडर जो है बिगिनिंग इन्वेंट्री के अंदर एलिमेंट्स कौन से आते हैं, एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या लाइन आइटम्स आते हैं, कौन से फैक्टर्स आते हैं, ठीक है ना? सबमिट परचेज ऑर्डर रिक्वेस्ट करने के बाद उसके अंडर में क्या क्या आते हैं, फाइनल शिपमेंट अमाउंट के अंदर जो है क्या क्या लाइन आइटम्स यूज होते हैं, यानी इसके ऊपर जो डिपेंडेंट है वो उसके अंदर आ जाते, ठीक है ना? तो अपने को ईजी मालूम हो जाता कि कौन सा जो है कई के बाद से यूज़ कर रहे क्या है, अपने को समझ में आ जाता। ये हो गया आपका पूरा जो है पूरा रीऑर्डर कर दिए। ये जो है इसका ये हो गया आपका इन्वेंट्री ऑर्डरिंग मॉड्यूल, ये जो है कंप्लीट हो गया। इससे जो है फाइनल एक्टिविटी है, तो ये इतना पूरा जो है एक्टिविटी है बहुत केयरफुल करना है, ईच एंड एवरीथिंग जो है करना है। इसका जो है फार्मूलास अभी आपको परवेज थोड़ा फार्मूलास डाल दे यार, मैं डालूँ? अरे वो पूरा डिस्टर्ब हो गया ना यार, मैं जो चेंज कर दिया लाइन आइटम्स क्या है आपने फार्मूलास जो डालने के। शिपिंग कास्ट, फाइनल शिपिंग कास्ट, शिपिंग कास्ट कहाँ है आपका? शिपिंग कास्ट जो है शिपिंग कास्ट यहाँ है आपका। शिपिंग कास्ट लाइन आइटम का आपका शिपिंग कास्ट लाइन आइटम का फार्मूला हो गया। और नेक्स्ट जो है कौन सा यार? फाइनल शिपिंग कॉस्ट। फाइनल शिपिंग कॉस्ट का क्या है आपका फार्मूला?
3 लाइन आइटम्स का फार्मूला भी डाल दिया। तो उसके बाद जो है आप नेक्स्ट जो है एक्टिविटीज़ इन्वेंट्री ऑर्डरिंग के बाद सो टेस्ट द फार्मूलास एक्टिविटी है नेक्स्ट, टेस्ट द शिपिंग कॉस्ट फार्मूलास। और जो है ये एक तो मॉड्यूल क्रिएट करे, फिर उसके बाद जो है वो फार्मूलास को जो है टेस्ट करने का भी रहता, प्रॉपर वर्क कर रहे नहीं कर रहे वो भी टेस्ट करना। फिर उसके बाद जो है एक्टिविटी ऐड डायनेमिक सेल एक्सेस टू इन्वेंट्री ऑर्डरिंग मॉड्यूल, वो मॉड्यूल को डायनेमिक सेल एक्सेस क्रिएट करने का रहता और एक एक्सेस ड्राइवर मॉड्यूल क्रिएट करके उसको अप्लाई करने का रहता। यानी एक एक चीज़ जो है इसका वो लेंथी है। So test shipping cost formulas. Before you continue, test the formulas for shipping cost, final shipping cost and shipping cost variance line items. Then let us look little closer when I tested formulas if I found bug. So यानी जो है आप जो भी फार्मूला सबमिट करें उसको कभी कभी जो है एरर भी आता, उसका सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है यहाँ पे देखेंगे। तो कौन सा सिचुएशन में एरर आता क्या है यहाँ पे देख सकते हैं हम। So the following formulas are not working properly for line item confirmed PO delivery. Confirmed PO delivery के अंदर जो है जो फार्मूला है, फार्मूला इज इक्वल टू ऑफसेट PO सबमिटेड फाइनल शिपिंग टाइम इन वीक्स काम, ये फार्मूला जो है इसके अंदर जो है एक एरर आ रहा। और नेक्स्ट लाइन आइटम confirmed परचेस ऑर्डर रिसिप्ट, तो फार्मूला इफ confirmed PO डिलीवरी ग्रेटर देन 0 देन ऑफसेट फाइनल शिपमेंट अमाउंट माइनस फाइनल शिपिंग टाइम वीक्स L0। ये भी इसके अंदर भी दोनों के अंदर भी जो है प्रॉब्लम आ रहा है। क्यों प्रॉब्लम आ रहा देखेंगे। व्हेन शिपिंग मेथड इज ओवर रिडन टू शो डिफरेंट शिपिंग मेथड द फार्मूला डज नॉट वर्क एज एक्सपेक्टेड। सो शिपिंग मेथड अगर ओवर राइड कर दिए इसके अंदर, तो जब जो है फार्मूला अपने को जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, लेट लुक एट दिस एग्जाम्पल फॉर कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम एरियाज। सो इसके अंदर जो है प्रॉब्लम एरिया को हाईलाइट करने के वास्ते यहाँ पे ये कर दिए, यहाँ पे जो है PO सबमिटेड एंड PO डिलीवरी। इसके अंदर जो है कंफर्म्ड PO डिलीवरी, कंफर्म्ड परचेस ऑर्डर रिसिप्ट, ये दोनों के अंदर जो है ये यहाँ पे वीक 3 के अंदर देखो यहाँ पे 1 एंड 12 14 जो वैल्यू आ रहा, तो ये जो है आप यहाँ पे देख सकते, यहाँ पे जो हाईलाइट करे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फाइनल शिपिंग टाइम इन वीक्स एंड फाइनल शिपिंग कॉस्ट। फाइनल शिपिंग कॉस्ट यहाँ है, तो इसके अंदर क्या हो रहा, द फाइनल शिपिंग टाइम वीक्स वैल्यू इज 1, सो ऑर्डर अमाउंट शुड बी डिस्प्लेड इन वीक 2। सो इसके अंदर क्या हो रहा है यार, सो फाइनल शिपिंग टाइम वीक्स क्या हो रहा है यहाँ पे फाइनल शिपिंग टाइम तुम्हारा वीक जो है वीक 1 हो गया। जनरली जो है वीक 2 वीक्स लगते, अगर रोड के थ्रू गया जो भी मटेरियल क्या होता 2 वीक्स लगते अपने को। यहाँ पे जो है 2 वीक्स ऐसा जो है हर जगह 2 वीक्स लग रहे। मगर क्या हो रहा है यहाँ पे फाइनल शिपिंग कास्ट, अगर मैं शिपिंग मेथड ओवरराइड कर दिया, रोड से जो है एयर कर दिया, तो फाइनल शिपिंग टाइम वीक्स क्या होता, टाइम क्या होता है यार, अगर रोड टू एयर चेंज कर दिया तो रिड्यूस हो जाता। ठीक है ना यार, वैल्यू क्या, टाइम क्या होता अपने को कम हो जाता, बढ़ जाता। अगर रोड से अगर एयर चेंज कर दिए कम हो जाता। जनरली रोड से अगर जा रहा तो 2 वीक्स है, अगर एयर से गया तो क्या होता, फाइनल शिपिंग टाइम भी क्या होता 1 वीक हो जाता, 2 वीक्स के जगह 1 वीक हो जाता। तो इसमें क्या है, इट इज़ नॉट वर्किंग एज एंटिसिपेटेड बिकॉज ऑफ हाउ ऑफसेट फंक्शन वर्क्स। So for example, the formula for confirmed PO delivery line item was offset PO submitted minus final shipping time weeks. So इस अगर यहाँ पे अगर चेंज हो गया तो ये वैल्यू क्या होना था,
फाइनल शिपिंग टाइम अगर एक वीक कम हो गए तो ये दो वैल्यूज भी कहाँ आना था यार अपने को, यहाँ पे आना था। नेक्स्ट वीक एक ही वीक के अंदर आपका प्रोडक्ट रीच होता ना, तो जनरली जो है 2 वीक्स के बाद अगर रीच हो रहा तो आपको जो है यहाँ पे आना वैल्यूज 1 एंड 12 14 जो भी है मटेरियल जो है शिपिंग मेथड है, ये होने के बाद 2 वीक्स के बाद आपका मटेरियल डिलीवरी हो गया, रिसिप्ट भी आ गया, ये हो गया आपका 2 वीक के बाद अगर हो रहा तो ऐसा आना। मगर 1 वीक के बाद अगर चेंज कर रहे ओवरराइड शिपिंग मेथड, ये दो वैल्यूज कहाँ आना अपने को, इंस्टेड ऑफ वीक 3 के जगह क्या कहाँ आना था अपने को, ये दो वैल्यूज किधर आना यार, वीक 2 के अंदर आना यार। अब वीक 1 के अंदर तो अपन ऑर्डर कर रहे ना, तो 1 वीक लग रहा, तो वीक 2 के अंदर आ जाना अपने को ये मटेरियल। डिलीवरी जो है यहीं चाहना, क्योंकि 1 वीक के अंदर ही चोरा ना, 2 वीक के अंदर नहीं हो रहा, ओनली 1 वीक के अंदर ही चोरा। तो 1 वीक के अंदर जो है डिलीवरी हो जा रहा आपका प्रोडक्ट, तो इसके लिए यहाँ पे आना था, मगर जो है यहाँ पे आ रहा 2 वीक के बाद आ रहा। क्यों आ रहा देखेंगे। दिस फार्मूला रिटर्न्स द वैल्यू फ्रॉम PO submitted line item from X amount of previous period where X value is the final shipping time weeks. So ये फार्मूला के अंदर क्या है आपका, फार्मूला के अंदर क्या है, फाइनल शिपिंग टाइम वीक्स। ये फाइनल शिपिंग टाइम वीक्स का जो है लाइन आइटम को देखता, बार बार जो है PO सबमिटेड लाइन आइटम क्या करता, PO सबमिटेड लाइन आइटम जो है वैल्यू लास्ट पीरियड कितना था वो देखता, माइनस यानी क्या होता, पास्ट पीरियड रहता, फ्यूचर पीरियड रहता, माइनस रहा तो पास्ट रहता, अगर प्लस रहा तो क्या देखता, ऑफसेट फंक्शन फ्यूचर देखता। यानी PO सबमिटेड लाइन आइटम का वैल्यूज देखते रहता हूँ, PO सबमिट कब हुआ क्या देखते रहता है। यहाँ पे PO सबमिट जो है, PO कौन सा वीक में सबमिट हुआ क्या देखते रहता हर वीक। तो जो है ये शिपिंग टाइम यानी पास्ट देखते रहता, शिपिंग टाइम माइनस रहा तो पास्ट देखते रहता, एक एक वीक देखते रहता। तो इसके अंदर क्या हो रहा, द फार्मूला इज अप्रिशिएटेड टू बी कैलकुलेटिंग द करेक्ट रिजल्ट बट ओनली बिकॉज ऑफ फाइनल शिपिंग टाइम वाज टाइम वीक्स वाज ऑलवेज द वैल्यू इज 2 वीक्स। सो अगर फार्मूले के अंदर जो है ऑलवेज अगर 2 वीक्स रहा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर जो है आपका जब भी जो है 2 रहा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फार्मूला प्रॉपर वर्क करता। मगर 2 का जगह 1 आ गए तो क्या होता है, यहाँ पे 1 आ गए तो जो है आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाता, 1 आ गए तो जो है फार्मूला प्रॉपर वर्क नहीं करता। तो क्यों नहीं करता देखेंगे। हाउ टू फिक्स फार्मूलाज, update the formulas for the line item, confirm PO delivery and confirm purchase order receipt, use the post function instead of offset। so offset के जगह जो है post function देखना है, post function अगर यूज़ करेंगे तो क्या होता, ये जो भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं इसका क्लियर हो जाता। तो post is similar to offset function because it can use another line item to define the number of periods to offset the value and it can add up relevant periods in the time scale। so इसके अंदर क्या होता, post and offset function दो भी जो है सेम फंक्शन के लिए काम करता। offset क्या करता, वैल्यूज को पुल करता, यानी एक पीरियड से लेके आके उठा के जो है दूसरा पीरियड के अंदर डालता। मगर ये जो पोस्ट फंक्शन क्या करता, वैल्यू को पुश करता, पुश यानी जो है सामने को जो भी है पॉजिटिव रहता पूरा। ऑफसेट के अंदर नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हम, पास्ट पीरियड भी पुल कर सकते, फ्यूचर पीरियड भी पुल कर सकते। मगर पोस्ट के अंदर क्या करता, जो भी वैल्यूज पीछे पीरियड में है उसको आगे ढकल देता, यानी पुश कर देता, सामने को ढकल देता। तो पोस्ट कैलकुलेशन इज द पुश द डेटा वेर एज ऑफसेट कैलकुलेशन इज पुल द डेटा। इन इन्वेंट्री मॉड्यूल वी नीड टू पुश द डेटा फॉरवर्ड, यानी इन्वेंट्री मॉड्यूल के अंदर क्या होना, आपको डाटा को सामने को पुल करना है, सामने को क्या पुश करना है, सॉरी नॉट पुल करना है, पुश करना है, यानी सामने को जो है आगे ढकलना है इसके वैल्यू को। इसके लिए जो है ये आप ऑफसेट फंक्शन के जगह क्या करना है, अपने को पोस्ट फंक्शन यूज़ करना है। यहाँ पे क्या हो रहा, सो
यहाँ पे फार्मूला क्यों फेल हो रहा है, यानी हमेशा अगर 2 वीक्स जो है, यहाँ पे क्या होता है यार, मेरा फार्मूला जो है 2 वीक्स का बाद का है, 2 वीक ये फाइनल शिपिंग टाइम ये है। तो इस ऑफसेट फंक्शन क्या हो रहा है, माइनस यूज़ कर रहे, माइनस यूज़ करने से क्या होता, 2 वीक्स पहले का देखता, जो भी है पीछे का पीरियड देखता। अगर यहाँ अगर देख रहा पीओ सबमिटेड का पीछे का 2 वीक्स का वैल्यू मालूम होता है। यहाँ पे अगर मैं देखा तो पीछे का यहाँ फर्स्ट वीक एंड सेकंड वीक में मालूम होता। नहीं सर। यहाँ पे जो है वीक 1 है मेरे को पास्ट पीरियड होना है। वीक 1 में पास्ट पीरियड क्या रहता है यार, कुछ रहता है क्या? नहीं सर। कुछ भी नहीं रहता No. क्योंकि वो वीक 1 वहीं स्टार्ट हो रहा ना, ठीक है ना। वीक 1 अभी स्टार्ट हो रहा मेरा, तो पास्ट क्या रहता है यहाँ पे, कुछ भी रहता ही नहीं। तो इस वास्ते पास्ट ये वीक के अंदर जो है सेकंड वीक के अंदर आपको 0 वैल्यूज है। देखो कंफर्म परचेस ऑर्डर रिसिप्ट कंफर्म, यहाँ पे 2 भी 0 है वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे सबमिट अगर रिक्वेस्ट यहाँ स्टार्ट करा, मैं फर्स्ट वीक के अंदर स्टार्ट करा, 2 वीक्स के बाद मेरा मटेरियल आता, यानी मैं रिजल्ट कहाँ पे आता, फर्स्ट वीक में अगर मैं ऑर्डर करे तो मेरा मटेरियल कब रीच होता, 3rd वीक में रीच होता ना, 3rd वीक। 3rd वीक में रीच होता। 3rd वीक में रीच हो गए तो ठीक है, आपको बराबर है, ठीक है। 2 वीक्स जो है बाद अगर यहाँ पे जो है फर्स्ट वीक के अंदर रिक्वेस्ट करा तो 2 वीक बाद बोले तो फिर भी यहाँ पे ठीक है, आपको रिजल्ट आ गया। मगर अनफॉर्चुनेटली जो है यहाँ पे ओवरराइड कर दिया मैं, ओवरराइड करके जो है मेरा टाइम ओनली 1 वीक ही है यहाँ पे। 1 वीक यानी जो है यहाँ पे क्या करता, मेरा 1 वीक बैक का अगर मेरा चेक करता है। फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पे जो है फार्मूला 1 वीक बाद अगर कुछ भी देखो बोले तो पीछे का कुछ वीक 1 से पहले कुछ देख सकता क्या अनप्लान? नो सर। यहाँ पे नेगेटिव फार्मूले के अंदर नेगेटिव सिंबल जो यूज़ करे, नेगेटिव सिंबल यूज़ करने की वजह से क्या हो रहा अपने को, नेगेटिव सिंबल से अपने को क्या हो रहा, ओनली पास्ट डिटेल देख रहा ना, यहाँ पे पास्ट डिटेल देख रहा। वीक 1 एंड वीक 2 के लिए पास्ट कुछ तो रहता क्या? वीक 1 के लिए कुछ भी पास्ट रहता, पास्ट पीरियड रहता कुछ वीक 1 से पहले, वीक 2 से पहले चलो जान दो वीक 1 पास्ट है। मगर जो है इसको 2 वीक्स पहले का देखो बोल रहे, 2 वीक्स पहले क्या है, 1 वीक पहले बोलते तो इसका वैल्यू डाल देता। मगर 2 वीक्स पहले बोले तो 2 वीक्स पहले कुछ है क्या यहाँ पे? वीक 2 के लिए भी कुछ भी नहीं है, वीक 1 के लिए भी कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा ना यार? यानी इसका बैक पीरियड अगर जो नहीं है देखो बोले तो क्या देखता, अनप्लान देख सकता क्या? यस सर। No. यानी प्रॉब्लम जो है कहाँ आ रहा बोले तो, यानी बैक का जो वैल्यू देख रहे पास्ट वीक 1 2 में तुम्हारे को बैक कुछ भी नहीं रहता। 2 वीक्स पहले का देखो बोले तो वीक 1 2 में नहीं देखता। अलबत्ता अगर वीक 3 में मेरा 2 वीक्स बैक का देखो बोले तो क्या देखता हूँ, जब देखता वीक 1 का देखता ना, वीक 1 का देखता। पीओ सबमिटेड 1 है यहाँ पे, तो इसलिए मेरा आंसर पूरा जो है डिलीवरी 2 वीक्स के बाद आ गया। यहाँ पे जो है चेक करके यहाँ पे डाल दिया, डिलीवरी हो गया, कितना प्रोडक्ट ऑर्डर दिए वो प्रोडक्ट आ गए 12-14। ठीक है ना यार? ये हो गया आपका, ये जो है डिफरेंस क्यों जो है आपका ऑफसेट फंक्शन फेल हो रहा है यहाँ पे, ये रीज़न है। ऑफसेट के जगह जो है आप पोस्ट यूज़ करना है। पोस्ट यूज़ करने से एडवांटेज क्या रहता है, यहाँ पे अपने जो भी एक एक वीक का वैल्यू जो है देख के आपको फॉरवर्ड पुश कर देता। इसके जगह जो वैल्यू जो है यहाँ पे आने का जो है, यहाँ पे जो फर्स्ट वीक में आने का है ना, शिपिंग टाइम अगर 1 वीक अगर चेंज कर दिए तो क्या होता, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट वीक के अंदर आ जाता। तो 1 वीक अगर चेंज करो तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है यहाँ पे आना है अपने को। मगर अनफॉर्चुनेटली ऑफसेट फंक्शन वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि पीछे का देख रहा हूँ। इसके अंदर पोस्ट फंक्शन के अंदर क्या रहता, ओनली वैल्यू जो भी है यहाँ पे देख के पुश कर देता, आगे पुश कर देता। तो वो जो है कैसा यूज़ करना है क्या है, अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है ऑफसेट के जगह पूरा जो है पोस्ट फंक्शन यूज़ करते। पोस्ट फंक्शन का कैसा जो है इसका यूज़ करते, इसका डिफरेंस क्या है पोस्ट एंड ऑफसेट का कल देखेंगे। देख के जो है पूरा जगहों पे जो है यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर पोस्ट यूज़ करने के बाद आपका रिजल्ट पूरा चेंज हो जाता। पोस्ट यूज़ करें तो जो है वीक 1 के अंदर आप अपना रिजल्ट आ जाता। जो भी है पीओ डिलीवरी है जो भी है, अगर जो चेंज कर दिया हम
तो उसके बाद जो है यहाँ पे चेंज कर दिया मैं, यहाँ पे क्या है ओवरराइड मेथड चेंज कर दिया एयर, तो इसके बाद जो है वैल्यू यहाँ पे आपका नेक्स्ट वीक के अंदर आ गया, ठीक है ना। हियर अनदर एग्जांपल यू कैन कंपेयर द रिजल्ट यूजिंग द प्रीवियस फार्मूला एंड अपडेटेड फार्मूलास। और फार्मूला अपडेट करने के बाद यानी जो भी अपन ओवरराइड करे उसके बाद वीक में जो है आपका रिजल्ट आ जाता। ये हो गया आपका पोस्ट फंक्शन का डिफरेंस। सो इसके अंदर जो है अपन उसका थ्योरी भी है और फार्मूलास अपडेट भी करना है। ऑफसेट का जगह जो है पोस्ट डाल के जो है चेक करेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर चेक करेंगे। जब तक जो है आप लोग ये जो भी एक्टिविटीज़ करें वो कंप्लीट करना है। तो ये कंप्लीट कर दो, शिपिंग कास्ट का जो है टेस्टिंग फार्मूला ये भी हो जाता। नेक्स्ट ऐड DCA डायनेमिक सेल एक्सेस का एक एक्टिविटी रहता, यानी ये लेंथी है ये स्प्रिंट 3, थोड़ा डेली एक्टिविटीज़ कंप्लीट करके आगे बढ़ना है यार। तो कितना एक्टिविटीज़ करें यार अभी तक, पूरा अप टू डेट कंप्लीट करें, नहीं कुछ पेंडिंग है? क्या स्टेटस है यार आप लोगों का एक्टिविटीज़ का? दाऊद कंप्लीट कल तक का पूरा कंप्लीट करा, सो स्क्रीनशॉट भेजा है ना यार मेरे को। अच्छा अच्छा ठीक है। अनिल, व्हाट अबाउट यू? Up to date. अप टू डेट कंप्लीटेड। सो व्हाट अबाउट यू आफरीन? Completed, sir. Completed. Dehana, did you complete all activities? Yes, sir. Completed, sir. Okay. Patan Javed, did you completed all activities? To complete. ओके। और एक बात क्या है, आपको जो अभी भी कंफ्यूज हो रहे यार, अब आपका जो है और एक जो अनप्लान वर्क स्पेस क्रैश हो रहा है, 2-3 रीजंस की वजह से क्रैश हो रहा है यार। एक तो जो है उसको रॉन्ग पासवर्ड मारना एक मिस्टेक रहता। अगर रॉन्ग पासवर्ड नहीं मारा, मैं हमेशा जो है सेव करके रखा बोल के बोल रहे। बाद लोग अगर वर्क स्पेस एक से 2 दिन ओपन नहीं करे तो भी क्रैश हो जाता। वर्क स्पेस को रोज़ ओपन करना है। आलम ये मैसेज डालो यार, रोज़ जो है वर्क स्पेस ओपन नहीं करोगे तो नहीं करे तो 2-3 दिन कंटिन्यू ओपन नहीं करे तो वर्क स्पेस क्रैश हो जाता। फिर उसके बाद अपने को पूछे तो खुद भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। वर्क स्पेस का थोड़ा अभी प्रॉब्लम चल रहा है, इस वास्ते जो है अब मैनेज कर लूँ, वो एक है। और नेक्स्ट जो है तीसरा चीज़, बार बार डायमेंशन चेंज करना, टाइम स्केल चेंज करना, इधर उधर करे तो भी उसके अंदर भी जो है पूरा डेटा पूरा चले आता, ठीक है ना यार। तो ये चीज़ों को थोड़ा कंसंट्रेट करना, रोज़ वर्क स्पेस ओपन कर लेना और जो है उसको सही मेंटेन कर लेना। किधर बोलते उधर जो है उसके अंदर डायमेंशन चेंज करना, इधर उधर नहीं करना। थोड़ा देख समझ के यूज़ करना वर्क स्पेस को, देन जो है वो सही रहता। उसके बाद भी अगर हो रहा बोले तो उसका अपन खुद भी नहीं कर सकते। और एक बात क्या है, अभी स्प्रिंट 3 का स्प्रिंट 2 तक तो सब करे। अगर जिसको वर्क स्पेस जिसको एक्स्ट्रा दूसरों को दे रहा हूँ, ओनली स्प्रिंट 3 का एक्टिविटीज़ करना। और वो भी जो है सप्लाई चेन मॉडल सेपरेट डाउनलोड नहीं करना। जो भी मॉडल आप लोगों का दूसरों का दे रहा हूँ उनका मॉडल में जो मॉड्यूल्स एक्स्ट्रा जो रहे मॉड्यूल नंबर 2 डाल के जो है क्रिएट कर लेना, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता स्पेस। नहीं तो अगर तुम सप्लाई चेन मॉडल डाउनलोड करके पूरा करने गए तो क्या होता, दोनों का जो है एक वर्क स्पेस में नहीं आता, 2 सप्लाई चेन मॉडल्स नहीं आ सकते, ठीक है ना। ऑलरेडी आप लोगों को बताया। Yes, sir. Yes, sir.